हेलो एवरीवन, हिमांशु दिस साइड। वेलकम बैक अगेन। सो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं एंड इन दिस पार्ट वी विल टॉक अबाउट द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म and superposition principle. So these are going to be the topics for our video. In the previous video you have already learned about charges and what are the properties of charges. वहाँ पर आपने quantization of charge के बारे में सीखा, additive nature के बारे में सीखा, conservation के बारे में सीखा, invariance of charge के बारे में सीखा and in today's topic आप charges के बीच में होने वाली interaction, that is force due to charges, which is governed by a law called as Coulomb's law, उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. Okay, so let's start quickly. So, part 2, lecture 2. So, in this video, आज हम क्या क्या करने वाले हैं? We will talk about number 1, Coulomb's law. Second, its similarities and differences with gravitational law. And number 3, Coulomb's law in vector form and some questions. So, starting with Coulomb's law. What is Coulomb's law? Coulomb's law basically हमें आइडिया देता है that what is the force between two charges kept at some distance. ठीक है, तो जब एक्सपेरिमेंटली दो चार्जेस को कुछ डिस्टेंस दूरी पर रखा गया जिनके मैग्नीट्यूड्स Q1 और Q2 थे, सो अगस्टिन द कूलम फाइंड आउट दैट the force between these two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between the two charges. So F, that is force between two charges, is directly proportional to the product of charges and F is inversely proportional to the square of the distance between the two charges. Here Q1 and Q2 are 2-point charges. ठीक है, kept at some distance r from each other. ठीक है, तो F कितना आ गया? ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे एंड वी विल इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r square. This part gives magnitude and r cap direction, which is determined by the nature of the two charges. इन दो चार्जेस का कैसा नेचर है, कैसी पोलैरिटी है, either they are both positive both negative. ठीक है, so this is the formula for Coulomb's law, where epsilon naught, it is permittivity of free space and it has a value 8.85 into 10 to the power minus 12 Coulomb square Newton inverse meter inverse square, and this is minimum value. Here you can also see that the force between the two charges is inversely proportional to epsilon naught, that is permittivity of the medium. मतलब permittivity जितनी कम, force उतनी ज़्यादा. So what do you understand by permittivity? Permittivity means it allows its own field to decrease the interaction between the two charges. So force is inversely proportional to permittivity, that is more permittivity means less force of interaction, less Coulomb force. ठीक है, तो परमिटिविटी से आप क्या समझते हैं? परमिटिविटी बेसिकली allows its own field to decrease
द इंटरेक्शन, या फिर डिक्रीज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, तो परमिटिविटी फ्री स्पेस में देखो मैटर मिनिमम है, कह सकते हैं जीरो है, तो मैटर जितना कम होगा परमिटिविटी भी उतनी कम। मैटर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे परमिटिविटी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि उसकी जो खुद की फील्ड होगी, खुद जो मैटर में चार्जेस प्रेजेंट होंगे वो इन दोनों के बीच की फोर्स को क्या करेंगे, हिंडर करेंगे, और फोर्स को क्या करेंगे, ऑलवेज डिक्रीज करेंगे। सो मोर द परमिटिविटी लेसर इज द फोर्स। परमिटिविटी का मतलब है इट अलाउज इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द फोर्स। तो परमिटिविटी को जितना बढ़ाओगे फोर्स उतनी कम होती जाएगी। नाम से तो लग रहा है कि परमिटिविटी विल अलाउ द फोर्स, बट एक्चुअली इसका उल्टा है। मोर द परमिटिविटी परमिट किसे कर रहा है, ये अपनी खुद की फील्ड को, खुद के मैटर को, खुद के चार्जेस को, टू डिक्रीज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, इतना क्लियर। अच्छा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इट इज टेकन एज के कूलम्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन पर कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर कूलम्स लॉ। आप इसे नोट कीजिए, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। नाउ सम इंटरेस्टिंग थिंग्स, सपोज यू आर गिवन टू चार्जेस प्लस Q1 and plus Q2. Let us name this charge as 1 and this charge as 2, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R. Now the force between the two charges अगर आप निकालना है, that is force on 1 due to 2, इसे कैसे पढ़ते हैं, force on 1 due to 2. Now the second charge will definitely repel the first charge because both have same polarity, और जब सेम पोलैरिटीज होती हैं तो चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो Q2 क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा कुछ फोर्स से। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी, इट विल रिपेल दिस चार्ज अवे फ्रॉम इट। रिपेल का मतलब होता है पुश अवे, तो ये इसे क्या करेगा, अपने से दूर पुश करेगा। तो दूर पुश करेगा तो फोर्स कहां लगाएगा, इसको इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाय कन्वेंशन इसे मान लेते हैं माइनस आई कैप। ठीक है, सिमिलरली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाले हैं। ठीक है, ये हमने क्या निकाली, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब अगर हम फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालेंगे ऐसे ही, तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो वो कितनी आएगी। नाउ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, that is force on 2 due to 1. Now see from the figure you can see that जो सेकंड वाला चार्ज है उसे फर्स्ट वाला चार्ज भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो रिपेल करने का मतलब होता है इट विल पुश इट अवे, तो पुश इट अवे तो मतलब दिस डायरेक्शन। सो दिस द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज विल एक्ट अलोंग दिस डायरेक्शन। लेट अस सपोज दिस इज एक्स एक्सेस, तो इसे क्या मानते हैं, आई कैप। सो ये कितना हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square and I cap. So from here you can see that both the forces are equal and opposite. So यहाँ से हम एक और प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं, that Newton's Coulomb's law follows Newton's third law, that is law of action and reaction. ठीक, clear? Now moving forward, आगे चलते हैं. Let us see some similarities between Coulomb's law and gravitational law, है ना। So अगर फॉर्मूले की बात करें तो we know that F Coulomb is equals to 1/4 epsilon naught Q1 Q2 by R square and R square, and F Newton, that is gravitation, it is equals to G m1 m2 by R square. ठीक है, क्लियर।
सो अब सिमिलैरिटीज बनाते हैं इन दोनों के बीच में। अब आपको दिख रहा होगा बोथ द फोर्सेस आर फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो फर्स्ट सिमिलैरिटी क्या कहेंगे, बोथ फोर्सेस फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, जिसमें F द नेट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। दूसरी सिमिलैरिटी क्या है, that both the forces are conservative in nature. What do you mean by conservative forces? Those forces for which the work done is independent of the part taken, that is it depends only on the initial and final position. आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो इस सीरीज में ये सब आएगा। सो बोथ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। फॉर एग्जांपल ए से बी अगर हमें जाना है तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन पाथ 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, वर्क डन इन 1, वर्क डन इन 2 एंड वर्क डन इज 3 इज ऑल इक्वल। ठीक है, तो चाहे ग्रेविटेशनल लॉ हो या फिर कूलम्बिक लॉ, बोथ आर कंजर्वेटिव इन नेचर। थर्ड क्या है, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल फोर्सेस? ऐसी फोर्सेस which depends only on the distance from the center or the radial vector are called as central forces। देखो यहाँ पे जो फोर्स है it is only dependent on r, it doesn't depend on theta and phi which are the other polar coordinates। ठीक है, तो थीटा और फाई मतलब पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पे डिपेंड करती है। चाहे आप पोजीशन कितनी भी चेंज कर लो, फोर्स क्या रहेगी, सेम। ऐसी फोर्सेस को कहा जाता है सेंट्रल फोर्स। फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज योर सन, ठीक है, और इसके आसपास अर्थ ऑर्बिट कर रही है, तो यहां पर भी डिस्टेंस मान लेते हैं r है, यहां पर भी डिस्टेंस मान लेते हैं r। तो थीटा चेंज करने से, मतलब एंगल चेंज करने से द फोर्स डजंट चेंज, फोर्स रिमेन्स सेम। तो ऐसी फोर्सेस को क्या कहा जाता है, सेंट्रल फोर्सेस, इन विच द वर्क डन या इन विच द नेट फोर्स ओनली डिपेंड्स ऑन द रेडियल वेक्टर। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेंट्रल फोर्सेस? ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंस क्या है सेंट्रल फोर्स होने के? तो पहला कॉन्सिक्वेंस टॉर्क विच इज r क्रॉस f, r क्रॉस f r कैप। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में है, अभी हमने पिछली लेक्चर सीरीज में हमारे वेक्टर्स कवर करे, तो वी हैव लर्न दैट पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0। सो ये कितना होगा, 0। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वी ऑल नो दैट टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू dl बाय dt where L is angular momentum. Now since torque external is 0, therefore L remains conserved। ठीक है, so these are the consequences of the Coulombic force being a central force। Now moving forward, ये कितने हो गए, 3 सिमिलैरिटीज। एंड चौथी सिमिलैरिटी क्या है, both the forces follows Newton's third law, that is action and reaction, which says that for two bodies equal and opposite forces exist which are called as action and reaction, and they act on different bodies। ठीक है, so fourth similarity क्या लिखेंगे आप, that both the forces follows Newton's third law, that is action and reaction। ठीक है, डन। तो होप यहां तक आपको आ गया होगा। नॉट टॉकिंग अबाउट द डिफरेंसेस, इतना नोट भी कर सकते हैं आप। पहले ये वाला कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड ऊपर वाला भी। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, टॉकिंग अबाउट द डिफरेंसेस। सो फर्स्ट डिफरेंस इज दैट योर कूलम्स लॉ इज may be attractive, may be repulsive, but gravitational law is always attractive, that is gravitational force is always
attractive, whereas Coulomb force may be attractive or repulsive. ठीक, and the big difference you can see in the formula that ये जो न्यूटन्स लॉ है, द ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी, जी से डिनोट कर देते हैं, तो एफ ग्रेविटेशनल में जो कैपिटल जी है दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड इसकी वैल्यू पूरी यूनिवर्स में क्या रहती है, कांस्टेंट, दैट इज 6.67 into 10 to the power minus 11, so its value doesn't change, therefore it is medium independent, whereas एप्सिलॉन परमिटिविटी जिसे हमने डिटेल में स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया है इस वीडियो में, changes as the medium changes, so this force is medium dependent whereas this force is medium independent. ठीक है, so gravitational force is medium independent whereas Coulomb force is medium dependent. ओके, तो होप आपको दोनों डिफरेंसेस क्लियर है, that gravitational force is always attractive whereas Coulomb may be attractive, may be repulsive, and gravitational force is medium independent whereas Coulomb force depends on medium, permittivity changes according to the medium. ठीक है, now talking about the limitations of Coulomb's law, first is valid for charges at rest, and second is valid for point charges. Now what do you mean by point charges? पॉइंट चार्जेस का मतलब ये है या तो जो दिखने में बहुत छोटे हो, मतलब जिनकी वैल्यू क्या हो, बहुत छोटे हो, बहुत पॉइंट साइज हो, या फिर दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस इतनी ज्यादा हो सच दैट दे अपीयर टू बी पॉइंट चार्जेस, मतलब एक्सटेंडेड बॉडीज, जैसे पेंसिल पे अगर यूनिफॉर्मली चार्ज फैला हुआ है और इसकी वजह से दूसरी कोई बॉडी है, मान लो मेरे ऊपर, हमें कूलम्स लॉ अप्लाई करना हो, so we cannot apply Coulomb's law for such bodies. Extended bodies के लिए डायरेक्टली आप Coulomb's law को अप्लाई नहीं कर सकते. For that the charges need to be point stationary charges. ठीक है, hope you are clear with the concept of point charges. ठीक है, moving forward, now talking about Coulomb's law in vector form. बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, डायरेक्ट 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से आ सकता है जहां पर वो आपसे इसकी डेरिवेशन पूछ सकता है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट में ऐड सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन. ठीक है, तो बड़ा सिंपल रखेंगे इसे, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं. सो वी हैव टेकन एक्स वाई कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन, और यहां पर हमने 2 चार्जेस लिए हैं. लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट पी, सो यहां पर हमने लिया है प्लस q1, and let us suppose this is point q, and here we have taken plus q2. now वेक्टर्स आप सबने डिटेल में पढ़ा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो वापस उस वेक्टर वाली सीरीज को रिवाइज करके आए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको बड़े इजीली समझ में आए. सो दिस इज o ओरिजिन, तो OP वेक्टर, लेट अस कॉल दिस OP वेक्टर एज r1, and OQ वेक्टर लेट अस कॉल दिस पोजीशन वेक्टर एज r2. now what we want to calculate is the force on 1 due to 2 and force on 2 due to 1. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दैट इज, ठीक है, तो कहां पर लगेगी, 1 पे 2 की वजह से फोर्स कहां लगेगी, इट विल रिपेल, तो रिपेल तो मतलब बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ मतलब ये इसका बनाते हैं फोर्स. सो दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. तो अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो क्या आएगा, k q1 q2 बाय, अब ये वेक्टर क्या है जो q से कहां जा रहा है,
P की तरफ। इनिशियल पॉइंट क्या है इसका Q, फाइनल क्या है P, तो इस वेक्टर का नाम देते हैं RQP कैप, और यहाँ क्या आ जाएगा RQP का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ सिमिलरली फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये कितना होगा K Q1 Q2। अब ये 2 रहा और ये 1, फोर्स का लगेगा इट विल रिपेल दिस, और रिपेल करेगा तो फोर्स का लगेगा नीचे की तरफ। तो इसे मैं डिफरेंट पेन से दिखा देता हूं आपको। सो लेट अस सपोज दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या लेंगे डिस्टेंस का, आर पी क्यू का होल स्क्वायर एंड आर पी क्यू कैप। नाउ वंस वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन आर पी क्यू कैप एंड आर क्यू पी कैप, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब जो हम रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं वो हो जाएगा। तो हाउ डू यू फाइंड आर क्यू पी कैप, तो लेट अस टेक ट्राइंगल ओ क्यू पी। नाउ यू ऑल नो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सो यूजिंग triangle law of vector addition we get OQ, this OQ vector plus QP vector, that is if two sides represent if two sides of a triangle represent, if two vectors represent two sides of a triangle taken in same order, then the third side is represented by the third vector is their resultant is represented by the third vector taken in opposite order। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा OP, that is OP। तो QP कितना मिलेगा आपको, OP माइनस OQ, एंड OP माइनस OQ कितना है R1 माइनस R2, और अगर इसे हम यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लेते हैं R1 कैप माइनस R2 कैप। सिमिलरली इन ट्राइंगल OPQ using triangle law of vector addition, you will get OPQ। देखिए ये O है, ये P है और ये Q, तो क्या आएगा OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ, OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ। तो PQ की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पर आपको OQ माइनस OP विच इज R2 माइनस R1, और कैप की फॉर्म में लिखेंगे तो R2 कैप माइनस R1 कैप, क्योंकि वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द डायरेक्शन। नाउ अगर आप QP कैप को देखें तो दैट कम्स आउट टू बी R1 कैप माइनस R2 कैप, और अगर आप PQ कैप को देखें तो दैट कम्स आउट टू बी माइनस कॉमन ले लेंगे R1 कैप माइनस R2 कैप, मतलब यहां से आप लिख सकते हैं QP कैप इज माइनस ऑफ PQ कैप। अब इन रिजल्ट्स को हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में अगर पुट करें, ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं तो F12 कितना आ जाएगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यहां क्या बचेगा R QP कैप। अब R QP कैप कितना है माइनस ऑफ R PQ कैप, ठीक है, तो F12 क्या बच जाएगा माइनस K Q1 Q2 बाय R square and R PQ cap, and what is this K Q1 Q2 R PQ square R PQ cap, ये क्या है F21, तो यहाँ से हमें क्या मिला F12 is equals to minus of F21, and this also proves that the Coulomb's law is in accordance with Newton's third law। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, नोट कीजिए इसे, होप डन। दूसरे वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड नाउ फॉर योर प्रैक्टिस आप डिफरेंट नोटेशन से इसे कोशिश करिए अपने कॉपी में सॉल्व करने की। अगर आप इसे डिफरेंट नोटेशन से सॉल्व करेंगे तो यू विल नॉट मतलब आप रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे इसमें, आप इसे अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज से समझ पाएंगे। करना क्या है बेसिकली ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई करना है, एंड दिस इज वेरी सिंपल। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड आगे चलते हैं। नाउ वी विल टेक सम क्वेश्चंस, ठीक है, ऑन कूलम्स लॉ, 1 or 2 questions and then we will finish our video। ठीक,
So let us take this question. What it is saying that a 10 microcoulomb charge is divided into two parts and placed at 1 centimeter distance so that the repulsive force between them is maximum. The charges of the two parts is. So देखिए जब भी फिजिक्स में या मैथ्स में इट टॉक्स अबाउट मैक्सिमा, तो यू कैन से दैट जब भी मैक्सिमा की बात होगी तो वहां पर आपको सिंपली क्या करना है, डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो मैक्सिमा में आपको क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो प्रॉब्लम को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं. तो दो चार्जेस लेते हैं Q1. ओके, सिंपल एक चार्ज है Q. नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. लेट अस सपोज वी डोंट नो द टू पार्ट्स. तो एक को x लेते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, Q माइनस x. नाउ द न्यू फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट का चार्जेस Q x Q माइनस x. अब इनके बीच में डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं हम r लिया है या d ले लेते हैं, चलो r ही ले लेते हैं, r का स्क्वायर. ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, when will this force be maximum. अब इस फोर्स को मैक्सिमम अगर होना है तो df by dx को कितना पुट करना पड़ेगा, 0. ठीक है, और वहां से जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी मैक्सिमा. ऐसे तो आपको फर्दर एक और प्रोसेस करना पड़ता है, डबल डिफरेंशिएशन, एंड उस पॉइंट पे आप चेक करेंगे इफ डबल डिफरेंशिएशन कम्स आउट टू बी पॉजिटिव देन दैट वैल्यू इज मिनिमम, एंड इफ डबल डिफरेंशिएशन कम्स आउट टू बी नेगेटिव देन दैट वैल्यू इज मैक्सिमम. बट ये अभी डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये हमने डिटेल में अपने टॉपिक बेसिक मैथमेटिक्स में डिस्कस करा है, तो जिसे उन चीजों का आइडिया नहीं है जिन बच्चों को भी. सो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप उन वीडियोस को फॉलो कीजिए सच दैट योर बेस इज क्लियर एंड देन यू कम टू दिस क्वेश्चंस, और आपको बहुत इजी लगने वाले हैं. तो व्हाट वी विल डू इज वी विल डिफरेंशिएट. अब चेंज क्या है यहाँ पर, x मतलब वेरिएबल क्वांटिटी क्या है x, तो df by dx एंड इक्वेट इट टू 0. तो इसे थोड़ा सा बेहतर करके लिख लेते हैं, f को इसे लिख लेते हैं k q x by r स्क्वायर माइनस k x स्क्वायर by r स्क्वायर. नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग df by dx we get k q by r स्क्वायर 1. ठीक है, वेट, यहां से मिलेगा k क्यू बाय आर स्क्वायर और यहां से क्या मिलेगा माइनस 2kx बाय आर स्क्वायर. ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जो जो कैंसिल आउट इसे 0 के बराबर रखते हैं, k से k कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो q किसके बराबर आ जाएगा 2x, देन x कम्स आउट टू बी q बाय 2. कितना होगा चार्ज मैक्सिमम जब दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जहां पे दोनों पार्ट्स के चार्ज के हो रहे हैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे दिख रहे हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने वाला है. सो दीज वर सम बेसिक अबाउट कूलम्स लॉ. तो यहाँ हमने कूलम्स लॉ का बेसिक डिस्कस करा, एंड व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग वी आल्सो डिस्कस इट द सिमिलैरिटीज बिटवीन कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ, डिफरेंसेस बिटवीन कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, एंड लास्ट में हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म डिस्कस किया, एंड देन वी डिड वन क्वेश्चन एंड दैट्स इट. सो थैंक यू so much, keep watching and keep learning.